That we are going to cover today is Motor Vehicles Act. The Motor Vehicles Act was passed in the year 1988 by the Parliament of India and regulate almost all the aspects of road transport vehicles. It provides detailed provision on licensing of the drivers, conductors, registration of motor vehicles जिसको आरसी बोलते हैं, the provision on controlling their permits, ट्रैफिक रेगुलेशंस, रिलेटेड इंश्योरेंस, लाइबिलिटीज़ एंड पेनल्टीज़, कुछ भी जो भी सब कुछ है दैट इज लिंक्ड विद द मोटर व्हीकल्स एक्ट. नाउ दिस एक्ट मेजरली कॉन्सेंट्रेट ऑन द innocent people who are on the road and can get affected by the drivers of the motor vehicles. The Motor Vehicle Act provides a provision for the compensation of such helpless people. They are referred to the third party, and the Motor Vehicles Act revolve around providing safety to these third party people. कि जैसे हिट एंड रन का कोई केस हो जाएगा एंड जैसे एक्सीडेंट हो जाएंगे कोई ऑन रोड, तो ये जो इनोसेंट पेडेस्ट्रियंस हैं उनको लाइक प्रोटेक्ट करने के लिए मेजरली दिस एक्ट रिवॉल्व्स अराउंड. Okay, the Motor Vehicles Act makes it mandatory for the driver to have a valid driving license. Like Motor Vehicle Act के तहत आपके पास अगर आप कोई कार या व्हीकल चला रहे हो तो you should have a driving license. Okay, that is you should be authorized by the government कि तुम हो गाड़ी चलाने के लायक. And no motor vehicle can be driven without being registered under the Motor Vehicles Act. This is the certificate of registration. दिस सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन शैल बी वैलिड. मतलब जो गाड़ी का सर्टिफिकेट है रजिस्ट्रेशन का, दैट शुड ऑल्सो बी वैलिड for the next 15 years from the date of registration and can be further renewed after every 5 years. Okay, so वेरियस एस्पेक्ट्स जो मोटर व्हीकल एक्ट्स कवर करता है एंड जो पेनल्टीज होती हैं एंड जो भी सब कुछ इंसान के ऊपर लाइक is enforceable comes under this. तो जो various offences and penalties है कुछ जो हैं are mentioned here and some of them are written on another notebook. So I'll tell you first of all. So the section 3 and 4 are very mandatory and like all the consecutive other sections also, but section 3 के under it comes that the license is mandatory. Okay, you should have a valid like driving license before operating any vehicle. Under section 3 Motor Vehicles Act, a person driving without a valid license should have to pay a penalty of rupees 500 or imprisonment of around 3 months. कि मतलब तुम चूज कर सकते हो कि तुम 3 months जेल जाना चाहते हो और you want to pay 500 rupees. ये जो है ये Motor Vehicles Act 1988 के provisions थे, but then in 2019 the Motor Vehicle Act was revised and now the penalty is much more than just 500 rupees. Okay. Next on then under the section 4, under section 4 age जो है of the person who is driving the vehicle should be more than 18 years of age. Like he should not be a minor, he should be like above 18 years. Now under section 5 of the Motor Vehicle Act, it is applicable if any like section 3 या section 4 में से जिसकी भी violation हो रही होगी, फिर हम section 5 लगाते हैं कि जैसे for instance कोई बंदा है जिसकी कार है, तो किसी को कोई होता है ना कभी आके बोल दे कि आपको मैं अपनी कार दे दो, लेकिन वो एक तो माइनर है और उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं है, तो अगर वो कोई एक्सीडेंट करता है या अगर कोई लाइक मिस हैपनिंग होती है तो जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इट कम्स डाउन टू द ओनर ऑफ द व्हीकल. तो जिस इंसान की वो गाड़ी होगी उसको वो सारी पेनल्टीज एंड ऑल सब पे करना पड़ेगा क्योंकि उसने अपनी गाड़ी क्यों ही दी. ओके, यहाँ पे भी सेम ही है कि अंडर सेक्शन 5 of the Motor Vehicle Act, a person allowing his vehicle to be driven by a person who do not have a valid license, that is section 3, and shall have to pay a penalty of 1000 rupees or with or without the imprisonment. Okay, now next up we have section 123, that is for challan for making the passengers to sit. जैसे होता है ना कभी कभी like matadors और जो ये होती हैं public transport होती है, ये ओवर क्राउडिंग हो जाती है और लोगों को कोई कहीं खड़ा किया हुआ है, कहीं आगे बिठाया हुआ है, कहीं छत पे बिठाया हुआ है, तो सेक्शन अंडर सेक्शन 123 एक चलान लाइक कट सकता है उनका भी. ओके, सेक्शन 124 के तहत अगर आप किसी गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट या कहीं पे भी ट्रैवल कर रहे हो विदाउट टिकट और विदाउट पास,
तो देन यू विल हैव टू पे अ चलान. देन सेक्शन 127 पे के अंडर है कि अगर तुम किसी पब्लिक प्लेस पे अपनी कार या कोई भी गाड़ी को पार्क करते हो बहुत देर के लिए, ऐसे ही छोड़ दिया तुमने उसको स्ट्रैंडेड, तो फिर गवर्नमेंट या कोई भी नगर नियम कुछ भी जो है वो सीज कर सकता है तुम्हारी व्हीकल को, और फिर तुम्हें पेनल्टी, हैवी पेनल्टी देनी पड़ सकती है. या जैसे नो पार्किंग एरिया पे कहीं पार्किंग करके चले जाओ तो दे कैन सीज योर व्हीकल. ओके, नेक्स्ट अप अंडर सेक्शन 128. ओके, सो दिस लाइक 177 हो गया या 180 हो गया, तो ये क्या है, ये ऑफेंसेस हैं. ऑफेंसेस मतलब कि जैसे 128 के अंडर क्या हो गया कि टू व्हीलर जो है कैन नॉट डू ट्रिपलिंग. तो 177 ऑफेंस, सेक्शन 177 के अंडर क्या आता है कि उस बंदे को 500 रुपीज का चलान होगा बिफोर 2019 एंड नाउ इट्स 1500 to 2000 रुपीज. ठीक है, तो ये ऑफेंस है कि उसको पे कितना करना पड़ेगा, उसके ऊपर कितनी पेनल्टियां चार्ज लगेगा. देन इट्स सेक्शन 129. सेक्शन 129 के अंडर इट्स हेलमेट इज मैंडेटरी विद गुड क्वालिटी हेलमेट होनी चाहिए. ऐसे नहीं कि रोड साइड से तुमने उठा ली एंड इट्स जस्ट ऑफ 100 or 200 रुपीज. हेलमेट इज नेसेसरी एंड इट शुड बी गुड क्वालिटी. ओके, एक्सेप्शंस किन के लिए हैं कि कौन हेलमेट को लाइक एक्सेप्ट, एग्जेम्पशन किन को मिली है, इट्स 6 बिकॉज दे वेयर टर्बन. और अगर तुम्हें कोई मेडिकल प्रॉब्लम है तो तुम्हें उसका अपने पास पूरा वो रखना है, और जब कोई तुम्हें पूछेगा कि तुमने क्यों हेलमेट नहीं पहनी और तुम्हारा चलान कट होने लगेगा तो तुम अपने डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन दिखा सकते हो कि हियर इट इज एंड दैट इज वाई वी आर नॉट वेयरिंग हेलमेट. ओके, सो मूविंग ऑन टू द सेक्शन 130. तो 130 के अंडर इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. अच्छा, जैसे तुम्हें किसी ने कहीं रोक लिया, किसी ट्रैफिक पुलिस इंचार्ज ने या किसी ने भी, और उन्होंने पूछा कि तुम अपने लाइसेंस दिखाओ, पोल्यूशन दिखाओ, पोल्यूशन सर्टिफिकेट दिखाओ, कुछ भी दिखाओ, किसी भी ट्रैफिक ऑफिसर के पास ये अथॉरिटी है कि वो तुम्हें कहीं पे भी रोके, ये पूछ सकते हैं. एंड इट कम्स अंडर सेक्शन 130 एंड इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू शो देम योर आरसी एंड एवरीथिंग एल्स. Then section 131, it is a duty of the driver to take precautions at unguarded railing, crossing, etc. मतलब ये तो like ड्राइवर की लिए है एक प्रोविजन. नाउ ओके, सो सेक्शन 133 के अंदर है कि जो ड्यूटी है ओनर की इंफॉर्मेशन देनी है उसने अपनी कार एंड ऑल के बारे में. दैट इज़ ऑल्सो वेरी नॉर्मल, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. देन सेक्शन 160 में इंपॉर्टेंट बताती हूँ कि हिट एंड रन का कोई केस हो जाता है तो कोई जैसे होता है ना, ड्राइवर जो होता है वो भाग के चला जाए, लाइक भाग जाए, तो वो जो कार होती है या जो भी वो गाड़ी होती है जिससे हिट किया गया होता है तो उसके ऊपर एक चलान करता है. सो नाउ मूविंग ऑन, इट इज़ सेक्शन 184. उसके अंडर जो ड्राइविंग डेंजरसली या फिर अगर तुम स्टंट्स परफॉर्म कर रहे हो जो एक्सीडेंट को लीड कर, लाइक रैश ड्राइविंग कर रहे हो, तो फिर वो सेक्शन 184 के अंडर तुम्हें चलान कर सकता है. देन सेक्शन 185 के अंडर इट इज़ कि तुम ड्रंक करके ड्राइव नहीं कर सकते हो या फिर तुम अंडर ड्रग्स के इन्फ्लुएंस नहीं हो सकते हो व्हेन यू आर ड्राइविंग. सो अगर तुम्हारा टेस्ट हो जाए और तुम ड्रंकन निकलो तो 185 के अंडर तुम्हारा ये वाला चलान कट जाता है. लाइक परमिसिबल लिमिट है 30 mg, बट अगर उससे ज़्यादा होगा तो तुम्हारा चलान और तुम्हारी गाड़ी भी सीज हो सकती है एंड इट मे लीड टू एक्सीडेंट. यू शुड नॉट ड्रिंक एंड ड्राइव, दैट इज़ फॉर श्योर. Then section 192 is using of vehicles without registration, like without RC या without registration. अगर तुम vehicle को use कर रहे हो तो इसका चलान it is cut under section 192. Then it's section 190 under section 194. You cannot drive a vehicle exceeding its weight. Like कभी कभी तो तुम overloading कर लेता है कोई trucks and all, तुमने देखे होंगे, तो you cannot drive that. It is offensible under section 194. Now इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. द सेक्शन 197 इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. इसके अंदर क्या है कि जैसे तुम किसी की गाड़ी लेके जाते हो बिना उसको सुनाए, बिना उसकी परमिशन के, चाहे वो तुम्हारे फ्रेंड की ही गाड़ी क्यों ना हो और बाइक क्यों ना हो, तो यू आर नॉट ड्राइविंग इट विद द इंटेंट ऑफ लाइक तुम चोरी करने की इंटेंट से नहीं चला रहे हो. जस्ट तुम्हें कोई काम था, तुम गए और तुम वापस आ गए, बट तुमने उसको सुनाया नहीं जिस बंदे की वो गाड़ी है. तो द ड्राइविंग व्हीकल दैट यू आर ड्राइविंग विदाउट अथॉरिटी, नॉट बाय द पर्पज ऑफ थेफ्ट, दैट पर्सन कैन लाइक वो तुम्हारे मतलब उसको वो ऑफेंसिव लग सकता है एंड ही कैन लाइक यू नो गो टू द पुलिस और तुम्हारे ऊपर एक्शन हो सकता है अंडर सेक्शन 197. देन मूविंग ऑन, we have section 207 एंड इसके अंदर क्या है कि पावर होती है जो जितने भी ये लाइक हायर ऑफिशियल्स हैं इनके पास टू डिटेन योर व्हीकल, और इफ़ इट डज़ नॉट हैव एन आरसी उसको सीज भी कर सकते हैं. ये जो भी ट्रैफिक पुलिस इंचार्ज एंड ऑल होते हैं, दे हैव द पावर टू सीज योर व्हीकल इफ़ यू डू नॉट हैव लाइक प्रॉपर जैसे कि जिसको सर्टिफिकेशंस एंड ऑल, तो दे कैन
That's all for the video. I hope you understood. If you want me to make a video on the Motor Vehicle Act that is revised to 2019 edition, do comment in the comment section below. Thank you so much for watching. Bye.